OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. Today we are going to start first topic of the textbook which is real number. Real number के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. Before going to start the chapter real number, what we have to study in this chapter or in this class, first हम लोग ये रिकॉल कर लें, फास्ट रिकॉल कर लें क्या क्या हम लोग ने रियल नंबर के बारे में क्या पढ़ा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. रियल नंबर्स we divide into two parts. There are two parts of real number. What are the two parts? Rational numbers and irrational numbers. Rational numbers and irrational numbers. Now, what are the rational numbers? Rational numbers that we can express in the form of P by Q. We can express in the form of P by Q where Q is not zero. You know, जैसे ही Q denominator zero होगा, the term जो होगा not defined होगा. And the one more condition is there. What is the more condition? P and Q belongs to integers. P and Q belongs to integers. And irrational number क्या होते हैं? Which we can't express in the form of P by Q. Where Q is not zero and PQ are integers. Clear? I is the set of integers. You can also use letter Z for the set of integers. तो क्या होते हैं रेशनल नंबर? ऐसे नंबर्स जिसको हम P by Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं. Q is not zero, PQ are integers that are said to be rational number. और जिसको P by Q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं उनको बोलते हैं irrational numbers. Now you can notice अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो इरेशनल नहीं होगा, अगर कोई इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगा. मीन्स no real number can be together rational and irrational. Rational and irrational. Clear? Okay. There is no number which is both rational and irrational simultaneously. And the set of rational number we express by the letter Q. आपको जैसे पता है set of, before writing this set of rational number, you know n is the set of yes, set of natural numbers. N is the set of natural numbers. Similarly, W is the set of whole numbers. आपको पता तो है नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर सेड टू बी सेट ऑफ होल नंबर्स. एंड फॉर इंटीजर्स वी यूज ईदर I or Z. I or Z. This is the set of integers. What are the integers? Integers are positive counting number as well as negative counting number and including 0. 0, 1, 2, 3 and so on up to infinity. Similarly, -1, -2 and so on up to minus infinity. These are the set of integers. Now, similarly, रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं किस सेट से? Q से. Q is expressed for the set of rational number. Or rational number, what are the rational number? The number which can be expressed in the form of P by Q where Q is not zero and PQ are integers. उसको कहते हैं हम
रेशनल नंबर, और जो रेशनल नहीं है दैट आर सेड टू बी इरेशनल बट रियल है. रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर सेड टू बी इरेशनल नंबर्स. क्लियर? You will not say number which are not real, which are not rational, they are irrational. ऐसा आप नहीं कहेंगे कि जो नंबर रेशनल है नहीं है that are irrational, because आगे हम क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं जो नॉट रियल है, that are said to be imaginary. तो अगर आप कोई नंबर रेशनल नहीं है तो that can be imaginary. बट हम लोग यहाँ पढ़ना है रियल नंबर. द रियल नंबर विच इज नॉट रेशनल दैट आर irrational. क्लियर? Q is the set of rational number. Then what is the set of irrational number? Irrational number का set क्या होता है? Set of rational number is expressed by the letter Q. If you cut the Q, we say this is the set of irrational number. Means numbers which are not rational. That when you cut Q, it means the set numbers, real number which are not rational. Means set of irrational numbers. Irrational numbers. क्लियर? तो जो नंबर रेशनल नहीं है बट रियल है दे आर सेड टू बी इरेशनल नंबर्स. तो रेशनल नंबर ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं. दैट विल आल्सो रिवाइज. देन हम लोग पढ़ेंगे आगे अपना जो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है. बट बेसिक मस्ट बी क्लियर व्हाट वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. व्हाट आर रियल नंबर्स? क्लियर? द नंबर विच आर नॉट रियल उनको क्या कहते हैं? नंबर्स विच आर नॉट रियल, which are not real, क्या कहलाते हैं? are said to be imaginary numbers. Imaginary numbers. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, what are the imaginary number which are not real are said to be imaginary number. यू नो कि रेशनल इरेशनल आपने अच्छे से पढ़ा है. अंडर रूट टू इट्स अ रियल, एंड रेशनल और इरेशनल इट्स अ इरेशनल. अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आर इरेशनल नंबर्स. एक जस्ट रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में किया हुआ है, प्रूव दैट रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 आर इरेशनल नंबर्स. बट अगर आप रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिखे, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मींस दे आर नॉट रियल. फॉर एग्जांपल रूट -2 इज नॉट रियल. अगर ये रियल नहीं है देन इट इज इमेजिनरी नंबर. क्लियर? नंबर विच आर नॉट रियल आर सेड टू बी इमेजिनरी नंबर. एंड द स्मॉलेस्ट unit of imaginary numbers. What is the smallest unit? रूट -2 रूट -3 रूट -4 ये हमारे क्या है? नॉट रियल या इमेजिनरी नंबर है. व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट? यस, इट्स अ रूट ऑफ -1. इट्स अ रूट ऑफ -1 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इमेजिनरी नंबर. एंड अगेन हम उसको रूट -1 नहीं लिखते हैं, बस हम इसको रूट -1 इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट एंड इट इज एक्सप्रेस एज अ लेटर आई, बट वी रीड इट. हम इसे रीड क्या करते हैं? आयोटा, IOTA. हम इसे रीड करते हैं आयोटा. एंड व्हाट इज द आयोटा? रूट ऑफ -1 विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इमेजिनरी नंबर्स. अब किसी भी नंबर के साथ आयोटा या रूट -1 लग जाए, दैट इज द मतलब मल्टीप्लाई हो जाए, दैट इज द इमेजिनरी नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल रूट ऑफ -2 अगर आपने लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज अ रूट 2 इंटू रूट -1. कैन बी राइट? यस, रूट 2 iota, because root of -1 is iota या I, but we will read it as a iota, not I. So root 2 iota is imaginary number. Similarly 2 iota, 3 iota, root 5 iota are imaginary numbers. इमेजिनरी नंबर्स. तो एक वर्ड इमेजिनरी नंबर्स का भी है और एक वर्ड रियल नंबर का भी है.
तो एक ऐसा भी तो वर्ड हो सकता है जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों तरह के नंबर एग्जिस्ट करते हो. यस, देयर मे बी पॉसिबिलिटी दैट ऐसा भी कोई ऐसी दुनिया है जहां पे रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो. दैट इज सेड टू बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? It is constituted of real and imaginary numbers. For example, 2 real number है, 3 iota imaginary number है. So if you add 2 plus 3 iota, this is said to be complex number. अच्छा, complex number को हम in general imaginary भी बोल सकते हैं, but इसके दो पार्ट होते हैं, real part and imaginary part. तो it is complex number. It is complex number. Complex number क्या होता है? Which is made up of real as well as imaginary numbers. तो 2 क्या हो गया हमारा? real part. And 3, not 3 iota. 3 iota is imaginary number. But what is the imaginary part? That is 3. 3 is the imaginary part. अगर क्लियर नहीं है, एक और एग्जांपल लिखिए. If we written 3 plus 4 iota, what is real part? Real part is read as, real part को हम लिखेंगे, what is real part? It's a 3. And what is imaginary part? Imaginary number is 4 iota, but 4 is imaginary part. What is imaginary part? 4. Clear? And 4 iota is imaginary number. तो complex number जो होता है, that is made up of real number and imaginary numbers. Clear? अगर हम एक bigger picture पे देखें तो सबसे बड़ा सेट क्या हो गया? It is a set of number system में सबसे बड़ा सेट है set of complex numbers. And it is constituted of real numbers and imaginary numbers. Real numbers and imaginary numbers. टिल नाउ हम लोग जेड से अभी तक क्या शो करते आए थे? सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है जेड. बट अगर हम बिगर पिक्चर पे बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम जेड से दिखाते हैं एंड इंटीजर्स के सेट्स को फिर हम आई से शो करते हैं, कैपिटल आई. ठीक, इंटीजर्स के सेट को हम शो करेंगे आई से अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंसीडर कर लिया तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय द लेटर जेड. तो जेड क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक, अब द जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आयोटा b. आयोटा यू नो, जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस आयोटा b. आयोटा इज रूट ऑफ -1, smallest unit of imaginary numbers, where a and b are itself real. a and b are itself real number. real number के सेट्स को r से दिखाते हैं. a and b are real, but iota b, जब iota मल्टीप्लाई हो जाएगा, iota b is imaginary. a is said to be real part of z. a is said to be real part of z. इसको in short we write real part of z is a. Similarly, b is said to be imaginary part. b को कहते हैं imaginary part of z, and in short we write im of z, means imaginary part of z, which is b. b is itself real, but इसको बोलते क्या है? imaginary part. Clear? तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है का जनरल फॉर्म क्या होता है? a प्लस आयोटा b, where a and b are real numbers. a is said to be real part and b is said to be imaginary part. You know, रियल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है. अगर हम इसमें कंसीडर कर लें इफ a is zero, तो अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा? इफ यू हैव चूजन a0, a इज रियल नंबर, तो a और b दोनों ही रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर में इंक्लूड होता है जीरो. तो a is 0 implies z क्या हो गया? आयोटा b. आयोटा b, इट्स अ प्योरली इमेजिनरी नंबर. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. और अगर हमने सेकंड केस b को 0 सेलेक्ट कर लिया, देन
B0 सेलेक्ट कर लिया, देन व्हाट अबाउट Z? Z क्या हो गया? A विच इज प्योरली रियल। अब अगर थर्ड केस कंसीडर करें, नीदर A0 नॉर B0, A इज नॉट 0, B इज नॉट 0, देन Z को क्या कहेंगे? Z इज सेड टू बी, Z इज A प्लस आयोटा B। इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही है, और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टिल इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट वी कैन ऑल्सो से इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो अगर कोई इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज नॉट प्योरली रियल, if a complex number which is not purely real, you can only call it complex number, या उसको आप imaginary number भी कह सकते हैं, but not purely imaginary। purely imaginary के लिए कंडीशन है रियल पार्ट मस्ट बी 0। आई थिंक ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। ये जो कंसेप्ट है दिस इज रिक्वायर्ड इन द हायर क्लास, जब आप आगे क्लास में जाओगे, बट आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि एक बड़े पिक्चर पे देखें तो सेट जो हमारा सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके पार्ट्स हो जाते हैं रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। एंड इन आवर क्लास वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट रियल नंबर्स, बाकी सबकी हमें स्टडी नहीं करनी है, वो हम लोग हायर क्लास में कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं, हमें पहले तो रिवाइज कर ले, रियल नंबर में हम लोग ने जो अभी तक लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको एक जस्ट फास्ट रिवाइंड कर लेते हैं। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल व्हिच वी हैव ऑलरेडी shown in the lower class, means in class 9th, show that root 2 is an irrational number, irrational number। so we have to prove root 2 is an irrational number। listen बेटा, you अब आपको क्लियर है कि रियल नंबर क्या है और व्हाट आर नॉट रियल। तो ऑब्वियस है कि सिंस रूट 2 इज रियल नंबर, रूट 2 वी नो इट्स अ रियल। ठीक, अब आपको पता है रियल नंबर या तो रेशनल होता है या तो इरेशनल होता है, और नो नंबर इज देयर विच इज बोथ रियल एज वेल एज इरेशनल। तो अगर हम कंट्राडिक्शन मेथड, वी यूज कंट्राडिक्शन मेथड हियर, इफ अगर हमने इसको रूट 2 को रेशनल मान लिया, फॉर अ मोमेंट रेशनल मान लिया, तो अगर हमने ऐसा कहीं किसी रेशनल की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करते हुए किसी ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए जो कंट्राडिक्शन दे रही है, तो हम कहेंगे कि जो हमने माना था, जो स्टार्टिंग की थी, दैट वाज रॉन्ग। कहां से स्टार्टिंग की थी? ये हमने रेशनल कह के चले थे, तो इट्स अ रॉन्ग। देन व्हाट इज करेक्ट? अगर कोई रियल नंबर रेशनल नहीं है देन इट विल बी इरेशनल। दिस इज द कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे इन आवर क्वेश्चन टू प्रूव एनी नंबर इज इरेशनल। तो लेट्स स्टार्ट। लेट root 2 is a rational number, let root 2 is a rational number, हमने कह दिया ये rational number है, and we know a rational number can be expressed in the form of yes p by q, therefore root 2 is p by q, और immediate हम कहते हैं q is not 0 as well as p q are integers, p q कैसे होने चाहिए? integers। अच्छा, if possible they are expressed in the simplest form, if possible they are expressed in simplest form। what is the meaning of this term? इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि they are expressed in simplest form। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया, मान लीजिए 12/14, it is not written, it is a rational number but it is not written in the simplest form because अभी numerator भी divisible है 2 से and denominator also divisible by 2। तो अगर कोई कॉमन नंबर, कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। 12/14 इज अ रैशनल बट इट इज इक्विवेलेंट टू द 6/7 व्हिच इज एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसी तरीके से p by q रैशनल है, वी हैव एक्सप्रेस्ड दिस p by q इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर कोई कॉमन फैक्टर है हमने पहले से ही कैंसिल कर दिया है, समझ लीजिएगा। तो 12/14 को हम 6/7 लिखेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर है उससे हमने कैंसिल कर लिया। तो p by q is expressed in the simplest form, means now no common factor is there in p and q
अदर देन 1. 1 इज द कॉमन फैक्टर. यहां पे भी 6 7 का कॉमन फैक्टर क्या है 1. तो इसको अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया तो पी क्यू का 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर अब नहीं है. क्लियर. नाउ स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो 2 is equal to p square by q square या p square we can write p square is equal to 2q square. Very obvious. 2q square is even number. 2q square is even number. तो 2q square ही हमारा p square है. This means p square is even number. Even number means divisible by 2. Means there is a common it is p square is divisible by 2 means p square is even number. If p square is even, तो आप हम ये पहले से ही जानते हैं, देन p is also even. p is also even. क्लियर. p स्क्वायर इवन है तो p भी तो इवन रहा होगा, तभी तो पॉसिबल है. अगर p इवन है, लेट p को हम इवन नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इट्स अ 2m where m is, what is m? Yes, m is a natural number. m is a natural number या whole number. Natural number or whole number, you can also say whole number. So put p is equal to 2m. Say this is the equation number 1. Put p is equal to 2m in equation number 1. तो p की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में. कितनी? 2m. तो इट्स अ 2m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. इट्स अ 4m स्क्वायर. तो ये q स्क्वायर इज 2m square. 2m square is again even. It means q square is even. q square is even. जैसे यहां पे कहा था p square even है तो p भी even है. q square even है, it means q is even. तो p is even, q is even. This means p is even and q is even. This implies 2 is common factor of p and q. Common factor of p and q. p is even, q is even means 2 is the common factor of p and q. Which contradicts, हमने स्टार्टिंग में कह दिया था अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो कैंसिल कर दिया है हमने. Which contradict that p and q have no common factor other than 1. Which contradict that p and q have no common factor. No common factor other than 1. Therefore, अब क्या लिखेंगे? Therefore, जो हमने माना था it was wrong. Therefore, our assumption, जो हमने माना था assumption is wrong. That is root 2 is rational. यही तो हमारा assumption था. Last line. Therefore, root 2 is, what is root 2? Irrational. क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग की कहां से कि रूट 2 इज रेशनल, तो उसको p by q लिखा. q इज नॉट जीरो एंड p and q आर इंटीजर एंड दे आर एक्सप्रेस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. मींस दे p and q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. अब हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो हमें क्या मिल गया? p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर. 2q स्क्वायर इज इवन मींस p स्क्वायर इज इवन. p स्क्वायर इवन है तो p इज आल्सो इवन. तो p इवन है तो p को हमने क्या मान लिया? 2m. और p की वैल्यू 2m, इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. इसमें पुट कर दी तो हमें क्या मिल गया? q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर. तो 2m स्क्वायर इज अगेन इवन मींस q स्क्वायर इज इवन. q स्क्वायर इवन है तो q इवन हो गया. p भी इवन, q भी इवन मींस p2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q. ये हमारा कंट्राडिक्शन आ गया कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग. ये लास्ट लाइन आपको लिखनी है. आवर assumption इज रॉन्ग. व्हाट वाज आवर assumption? रूट 2 को हमने क्या माना था? रेशनल. इट्स रॉन्ग मींस व्हाट. तो करेक्ट क्या होगा? अगर हमने स्टार्टिंग में कहा ना कि रियल नंबर है, रियल नंबर अगर रैशनल नहीं है देन इट इज irrational. Hence proof. This is the proof. Similarly, you can prove root 3, root 5, root 7 are also irrational number. I hope आपको ये concept समझ में आया कि how to prove root 2, root 3, root 5 are irrational. Sorry. In next class, we will take one more example. Then उसके rational और irrational के combination से जो number बनेगा
उसको क्या कहेंगे, दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.